جس طریقے سے کچھ کلاسیکل تھیوریز ہیں، کلاسیکل مثالیں ہیں، اور ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں اور ہم کلاسیکل جمہوریت کے تصور رکھتے ہیں، اسی طریقے سے میڈیا میں بھی ہمارے تصورات کلاسیکل ہی ہوتے ہیں، آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں۔ میرے سے پہلے جن سینئرز نے بات کی، میں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے تھوڑا اختلاف رائے رکھوں یا تھوڑا اختلاف اپنے اس میں بیان کروں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو پیپر پڑھنا ہے، تو سوری میں لکھ کے آیا ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پنجاب اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں سورج غروب ہونے کو ہے۔ ایک خاتون ہے، بچے کو ہاتھ میں لے کے آگے جا رہی ہے اور پیچھے ایک ریلی ہے، اور ریلی میں لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ بلوچوں کی نسل کشی بند کرو، لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کرو۔ اس حال میں موجود کتنے لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کی کیا کہانی ہے؟ 1 2 3 4۔ اس کی لا علمی جو لڑکی کی، اس کی لا علمی جو ہے، ہمارے جو دوست موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قارئین، سامعین، ناظرین پردہ نہیں چاہتے، یا انہیں بتایا نہیں گیا، یا جن کی ذمہ داری ہے، جن اداروں کی، انہوں نے اس پورے موضوع سے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ یہ میرا خیال ہے کہ آپ خود اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کی کیوں ہے اس سے لا تعلقی۔ مگر آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر موجود ہوں گے، اگر ایکٹیو ہوں گے، تو یقیناً انہیں پتہ ہوگا کہ اس لڑکی کا نام مارنگ بلوچ ہے، اور اس کے والد پہلے لاپتہ ہوئے، پھر لاپتہ ہوئے، اس کے بعد اس کی لاش ملی، اس کے بعد اس کے بھائی لاپتہ ہوئے، اور اس دن سے لے کر ایک عام سی لڑکی سڑکوں پہ ہے۔ تو بلوچستان میں جبری گمشدگیاں یا لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے کا سوال ہو، یا پی ٹی ایم کی تحریک ہو، یہ وہ موضوع ہیں جو سول رائٹس کی موومنٹس کی شکل میں موجود ہیں، مگر آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ یہ مین اسٹریم میڈیا پر نظر آتی ہوں۔ مین اسٹریم جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مین جو بڑے چینلز ہیں، جو بڑے اخبارات ہیں، ان کی اسکرینوں میں اور ان کے نیوز پیپرز میں یہ آپ کو کہیں نظر آتی ہوں۔ کوئی حکومت کا رد عمل سامنے آ جائے تو پھر سرخیوں میں یہ خبریں آ جاتی ہیں۔ مہذب معاشروں کی طرح ہمارے دستور پاکستان میں بھی لوگوں کو تنظیم سازی، اجتماع، بولنے اور لکھنے کی آزادی حاصل ہے، اور کئی لوگوں کی طرح میری بھی یہ رائے ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے جو مختلف فارم ہیں، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس صورتحال میں جب آپ کو کہیں سے اسپیس نہیں ملتا تو پھر متبادل تلاش کیے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہ متبادل ہینڈ بلز، پمفلیٹ اور کتابچوں کی صورت میں ہوتے تھے، اور موجودہ وقت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے انقلاب نے متبادل میڈیا اور خبروں کے ذرائع کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تھوڑا سیاسی طور پہ بھی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کی تقریر اور تصویر پر جب پابندی لگی تو انہوں نے ٹویٹر اور یوٹیوب کا سہارا لیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جلسوں میں انہیں آف ایئر کر دیا جاتا تھا، انہوں نے فیس بک لائیو کے آپشن کو اپنایا۔ گزشتہ سال سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد ہو گئی۔ ان کی جماعت نے اپنے ورکروں اور ہمدردوں کے لیے سوشل میڈیا کی ایپس کی مدد حاصل کی۔ اب نہ صرف ان تک بلکہ عام عوام تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اور اس بیانیے سے جڑے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے کون سے اکاؤنٹ ہیں جہاں سے انہیں یہ معلومات دستیاب ہوگی۔ روایتی میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کو اگر میٹروپولیٹن میڈیا قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور راولپنڈی کے علاوہ آپ کو شاذ و نادر ہی خبریں سننے یا دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر کوئی بری خبر ہے، یعنی کسی بس کا حادثہ ہو گیا، ٹرین الٹ گئی، کشتی ڈوب گئی، بم دھماکہ ہو گیا، اس صورت میں ہی آپ کو اس علاقے کی خبر ملے گی۔ اس کے علاوہ انتہائی مشکل ہوگا کہ آپ کو
किसी ज़िले की खबरें मिली हों। तो इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया बाकी कंट्री से डिस्कनेक्ट होता है। लेकिन इसके बरक्स आप इस मौजू पर यूट्यूब या फेसबुक पर 2 लफ्ज़ लिखें, वहाँ की खबर आपके सामने आ जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाकर उस पर खबरें शेयर करते हैं। बकौल उन्हें इसका रिस्पांस ज़्यादा मिलता है। खबरों के बाद अगर आप तज्जियों पे आ जाएं तो न्यूज़ चैनल पर यह सिलसिला रात 8 बजे के बाद शुरू हो जाता है। आम शहरियों को याद हो चुका है कि किस एंकर पर्सन की क्या लाइन है, किसके मेहमान कौन हो सकते हैं। बाज़ औक़ात एक ही मेहमान कई प्रोग्राम्स में मौजूद होता है और साथ में लाइव भी तहरीर रहता है। इन प्रोग्राम्स के मेज़बान भी ज़्यादातर इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से होंगे। इसमें भी जो चारों सूबों की कौमियतें हैं उनकी नुमाइंदगी नज़र नहीं आएगी। इसके बरक्स आपको यूट्यूबर दीगर पहलुओं पर भी बात करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा ट्विटर पर स्पेस हो या क्लब हाउस, लोग अपने मनपसंद मौजूओं को सुनेंगे, बात करेंगे और अपनी राय का भी इजहार करते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स ने मवाद तख्लीक करने और उनकी तकसीम करने का अख्तियार क्रिएटर को दिया है। मौजूदा वक्त में कई कहानियां इनके ज़रिए बयान की जा रही हैं। इसी बुनियाद पर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये कहानियां बाज़ औक़ात उठानी पड़ती हैं। रानीपुर की हवेली में 9 साला बच्ची का कत्ल हुआ। पहले वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फेसबुक पर ब्लॉगर ने सूरत हाल बयान की, उसके बाद यह खबर ट्विटर पर ट्रेंड बन गई। नतीजे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को शाया किया। सिंध के इलाके सकरन में रेंजर्स की फायरिंग में 4 से ज़ायद अफराद मारे गए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर यानी नेशनल मीडिया पर रेंजर्स का एलामिया रिपोर्ट हुआ कि मुकाबले में 4 मुलजिम हलाक हुए। खुदकश जैकेट्स में इस्तेमाल होने वाला मवाद भी बरामद किया गया। इसके मुकाबले में सोशल मीडिया पर जाए वक़्वा से लेकर हस्पताल तक की वीडियोस और एहतजाज सामने आया, जिसके बाद सरकारी मौक़िफ़ में तब्दीली आई और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली आई। जब किसी मजलूम को जालिम करके पेश किया जाएगा तो नाज़रीन और क़ारीन कैसे एतबार करें। बाद में इन्हीं सकरन के मुतासिरीन को हुकूमत ने मुआवजा दिया और गलती भी तस्लीम की थी। थर में कैद साली हो या मलीर में अरब शिकारियों से तसादम के बाद तशद्दुद में हलाक होने वाला नाजिम जोखियो, सोशल मीडिया ने ही मेन स्ट्रीम को आखिर फराहम की। वज़ीर आज़म से लेकर सियासी जमातों के सरबराह अब अपना बयान ट्विटर पर शेयर करते हैं या तो फिर वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं। इस तरह शो बिजनेस की सेलिब्रिटीज़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर प्रोफेशन की कामयाबियाँ रद्द अमल इंस्टाग्राम पर जारी करती हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया वहीं से कंज्यूम करता है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो लिंक्डइन पर आपको मौके फराहम किए जाते हैं। मुलाजमत के ऐड के लिए किसी अखबार को देखने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये बात आप यकीनन मुतअद्दिद बार सुनते आ रहे होंगे। अगर आप इनसे मिलें तो उनकी एक बड़ी तादाद ने अखबार पढ़ना और टीवी देखने से दूरी अख्तियार की हुई है, लेकिन मुतबादल मीडिया या और सोशल मीडिया पर उन्हें अपना ख्याल और मौक़िफ़ बयान करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये एक और बात आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन उनके बारे में ये समझ लिया गया है कि उन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट से ही दिलचस्पी है, लिहाजा उनके लिए तो ड्रामे बनाए जा रहे हैं और नतीजे में 2 दर्जन से ज़ायद न्यूज़ चैनल और अखबारात में ख़वातीन जर्नलिस्ट की तादाद न होने के बराबर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्क्रीन की खूबसूरती के लिए उन्हें न्यूकास्टर और बाज़ हालत हज़रा के प्रोग्राम्स की मेज़बानी दी गई है, लेकिन फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क में उनका हिस्सा इंतहाई महदूद है। लेकिन इसके बरक्स यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक आपको ख़वातीन की कामयाबियों की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, पारसी भी मौजूद हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका हिस्सा साल में 2 तस्वीर दिवाली, होली का पैकेज या क्रिसमस का त्यौहार तक महदूद होता है। उसके बाद मीडिया उन्हें अगले साल तक भूल जाता है। हालत तो इस कदर है कि जलियांवाला वाक़े का फॉलो अप तक भी रिपोर्ट नहीं किया गया। सिर्फ कराची की यहूदी कम्युनिटी के कब्रिस्तान से लेकर सिर्फ कराची को ले लें, यहूदी कब्रिस्तान से लेकर हिंदुओं के मंदिरों तक
तफसीलात यूट्यूबर बयान कर रहे होते हैं। पारसी और गौंस कम्युनिटी के खानों से लेकर त्योहारों को फॉलो वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया ज़्यादा डाइवर्स है और पसमानदा तबकात को भी नुमाइंदगी देता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता। मेन स्ट्रीम मीडिया एक कारपोरेट शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसकी पहली तरजीह प्रॉफिट है। इसके लिए हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर होना लाजमी होता है, लिहाजा हुकूमत वक्त का जो बयानिया हो उसको पेश करना है पहली जिम्मेदारी समझी जाती है। लेकिन जो निजी इदारे और कंपनियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम भी किया जाता है, क्योंकि वो भी क्लाइंट है। इस बारे में बहरिया टाउन की मिसाल सबके सामने है। इंडिजिनस अलायंस गुज़िश्ता कई सालों से इस तमीराती मंसूबे के खिलाफ सरापे एहतजाज है, लेकिन आपने कहीं उनकी न्यूज़ क्लिप देखी? एक दो चैनल्स के अलावा कोई तबसरा या तज़किया सुना? सूरत इस कदर संगीन है कि अगर फिर अदालत फैसला भी दे दे तो मलिक रियाज और बहरिया का नाम नहीं लिया जाता। गुज़िश्ता ही दिनों जियो के प्राइम शो में शाहजेब खानजादा की आवाज़ इदारे ने खुद म्यूट कर सेंसर कर दी। इसके बरक्स आपको सोशल मीडिया पर इस हवाले से तमाम खबरें दस्तयाब होती हैं। अमेरिका के नामवर रॉक स्टार और शायर जिम मॉरिसन का कहना है, जो कोई भी मीडिया को काबू में करता है दरअसल वो ज़हनों को काबू में करता है। मीडिया लोगों की राय आमा बनाने और एजेंडा बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है, लेकिन इस वक्त ये मीडिया वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आता है। माजी में अवामी मफादात को तरजीह होती थी, लेकिन अब ये माजी का किस्सा बन चुका है। इसकी वजह बाज़ बिजनेस ग्रुप्स का इस इंडस्ट्रीज में आना है, ताकि कारोबार और इससे मुंसलिक अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस सूरत में हुकूमत को मीडिया को अपने मिजाज और अंदाज में चलाना आसान बन जाता है। हर यूट्यूबर, ब्लॉगर और व्लॉगर्स की हर खबर और मालूमात तस्दीक शुदा नहीं होती, लेकिन उनका एहतसाब क़ारीन और नाज़रीन करते हैं, क्योंकि अगर वो उनके एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे तो उनकी व्यूअरशिप कम होगी। वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी। इसके अलावा हुकूमत भी रूल्स बना रही है और कुछ रूल्स मुतारिफ भी कराए गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में बाज़ सहाफ़ी हुकूमत तो बाज़ अपोजिशन जमातों की तरफदारी करते हुए हैं। बयानिए की रेड लाइन क्रॉस करने वाली सहाफ़ियों को संगीन नताइज से गुजरना पड़ सकता है, यानी वो ऑफ स्क्रीन हो सकते हैं, वो कई साल बेरोज़गार रह सकते हैं। इस तमाम मुश्किलात में भी सहाफ़ी सहाफ़त कर रहे हैं। उनके सामने हयातुल्लाह, सलीम शहजाद, अरशद शरीफ, जान मोहम्मद मेहर तक की खून से भरी लाशें मौजूद हैं, लेकिन जिसको हक़ व सच की बात करनी है वो करता है, वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया। शुक्रिया।